Dear students, today we discuss about the Dijastra's algorithm. This algorithm is specially used for the shortest path from a specific vertex to another specific vertex. So when we have to find some path between the shortest that is shortest path from a specific vertex to another specific vertex, then we have to use the Dijastra's algorithm. What is this distance? As we know that distance is a length between the parts. So a simple weighted graph G of n vertices is described by n cross n matrix. If I describe this n cross n matrix, and D is equal to Dij, where Dij is the length of the directed edge from the vertex I to vertex G. So Vi, if I have to find the distance between Vi and Vj, that is called distance of Dij, which is always greater than 0, as we discussed in the last lecture, that about the definition of this algorithm. So the same, but Vi to, if I have to find this distance of u comma u, that is 0, that is distance of Vi comma Vi is 0. That means d of I is equal to 0. Similarly, if there is no edge between I and j, so no direct edge between I and j, then we can say that Dij is equal to infinity. If there is an edge between I and j, Vi and Vj, two vertices, if I say that Vi and Vj, so suppose that is one vertex Vi and there is an edge and this is another vertex Vj, so this is called the distance. If Vi, I have to find the distance between Vi to Vi, then it is called 0, and if Vi to Vj, then it is a distance, it is called Dij. If another vertex Vk is here, so what is the distance between Vi to Vk? That is Dik is infinity, because there is no edge between Vi and Vk. So there is some basic thing about the shortest part. Now with the description of the algorithm. What is Dijkstra's algorithm? Dijkstra's algorithm is labeled the vertices of the given diagram. At each stage in the algorithm, some vertices have permanent label, other has a temporary label. So when we start from in this example, we have to first understand what is the Dijkstra's algorithm. So Dijkstra's algorithm is, when we start, we give some permanent label from a specific vertex to distance from the specific vertex, and we have some given the temporary label. So when we start from A, so its permanent label is 0, because the distance from A to A is 0, and then we say it is a starting vertex S, and so another distance we doesn't know, then we give them the temporary label, that is called infinity. So when we start an algorithm, if I am starting from the point vertex A, then what distance from vertex is 0, so its permanent label is 0, and all other vertex, suppose we have total n vertexes, so n minus vertexes are the in label infinity. इन शॉर्ट हमें इतना याद रखना है कि हम जब स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम, तो जिस वर्टेक्स से मुझे सपोज के A to Z के बीच में फाइंड करना है डिस्टेंस, सो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है A, उस पॉइंट पे आपको परमानेंट लेबल लगाना है 0, क्योंकि A का A से डिस्टेंस 0 होता है, और बाकी के जितने भी वर्टेक्स है सबको हमें इन्फिनिटी देना है. नाउ हमारा स्टेप 1 स्टार्ट होता है. सो व्हाट इज द स्टेप 1? Every vertex J that is not yet permanently labeled gets a new temporary label whose value is given by minimum old label of J, old label of I plus Dij. यानी मिनिमम क्या लेना है, उसका ओल्ड लेबल J जो है उसका वो, या फिर ओल्ड लेबल जो उसके आगे का वर्टेक्स था I, उसका ओल्ड लेबल और उनका I और J के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनका टोटल, इन दोनों का टोटल मिला के जो नया लेबल बनता है, वो इन दोनों में से जो मिनिमम लेबल है उसको हम कहेंगे J का नया लेबल. Where I is the lastest vertex permanently labeled in the previous iteration, and Dij is the direct distance between vertices I and J. If I and J are not joined by an edge, then Dij is equal to infinity. अगर वो ज्वाइन नहीं हुआ है तो उनका
लेबलिंग ऑफ वैल्यूज इन्फिनिटी हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द स्टेप 2? The smallest value among all the temporary label is found and this becomes the permanent. जो भी टेम्पररी लेबल है उसमें से हमें क्या फाइंड करना है? मिनिमम लेबलिंग किसका है वो फाइंड करना है. जितने भी टेम्पररी उसमें से, परमानेंट को हमें छूना नहीं है, जितने भी टेम्पररी उसमें से हमें मिनिमम लेबल को फाइंड करना है, उसको हमें परमानेंट बनाना है. अगर उसमें भी टाई होती है, इफ देयर इज अ टाई, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी को सिलेक्ट करना है या कोई कंडीशन नहीं है. और ऐसे ही हमें स्टेप 1 स्टेप 2 फिर से रिपीट करना है जहां तक हमें सबके परमानेंट लेबल ना मिल जाए. सो मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं. सो अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल. सो यहाँ पे हमें V1 और V5 के बीच में मुझे लेबल फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड करना है, लेकिन हम यहाँ पे सबके शॉर्टेस्ट पार्ट फाइंड करेंगे. सो फॉर फाइंडिंग दैट शॉर्टेस्ट पार्ट हमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हमारा V1 है, जिसको मैंने यहाँ पे S लिखा है. सो नाउ हमने जो डेफिनेशन में कहा गया उस हिसाब से जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका परमानेंट लेबल होगा 0 और बाकी सबका परमानेंट लेबल होगा, अभी टेम्पररी लेबल होगा, दैट इज इन्फिनिटी. यानी हमें जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसका परमानेंट लेबल 0 होगा, बाकी सबका लेवल होगा इन्फिनिटी. सो मैं यहाँ पे इसको परमानेंट लेबल के फॉर्म में रखता हूँ, यानी इसको मैंने क्लोज बॉक्स करके वहाँ पे टिक मार्क किया. इसका मीनिंग हुआ कि इसका परमानेंट लेवल 0 है. क्यों? इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. सो मैंने इसको परमानेंट, क्योंकि अभी तक सारे टेम्पररी थे, 0 और ये सब इन्फिनिटी थे, उसमें से सबसे मिनिमम 0 है, तो 0 को मैंने परमानेंट लेवल बना दिया. यानी V1 का तो परमानेंट लेवल मिल गया मुझे 0. नाउ अब मेरे पास 0 I मुझे मिल गया, बराबर. मेरा परमानेंट ये परमानेंट लेवल V1 का है तो 0 है. अब V1 किसके साथ जुड़ा है? V2 के साथ जुड़ा है. उसके साथ उसका डायरेक्ट एज है, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 100. यानी 0 + 100 कितना होता है? 100. और V2 का अभी लेबल कौन सा है? V2 का सारा लेबल कौन सा है? इन्फिनिटी है. सो मुझे क्या फाइंड करना है? मिनिमम ऑफ ओल्ड लेवल ऑफ V2 यानी इन्फिनिटी. और नया लेवल क्या होगा? 0 + 100. नया लेवल क्या होगा उसका? 0 + 100, क्योंकि 0 मेरा परमानेंट लेवल है. उस परमानेंट लेवल में मुझे क्या ऐड करना है? इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड लेवल ऑफ J. ये मेरा I है और ये मेरा J है. ये I है और ये मेरा J है. तो ओल्ड लेवल कितना है J का? तो इन्फिनिटी. अभी मेरे पास इसको मैंने 0 दिया तो बाकी सबको मैंने इन्फिनिटी दिया है. सबको मैंने इन्फिनिटी दिया है. सपोज कि ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी है. अभी मेरा लेवल सारा इन्फिनिटी है. अब मुझे क्या करना है? इसका ओल्ड लेवल इन्फिनिटी है. नया लेवल क्या होगा? ओल्ड लेवल ऑफ I. यानी I का लेवल क्या है? 0. और इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? Dij क्या है आपका यहाँ पे? 100. 100 इज अवर Dij. तो 0 + 100 कितना होता है? 100 हुआ. तो 100 और इन्फिनिटी दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 100 है. सो मेरा अब V2 का नया लेवल क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. उसी तरह से V3 का नया लेवल क्या होगा? तो यहाँ पे 0 + 30 यानी 30, लेकिन उसका ओल्ड लेवल इन्फिनिटी है. तो 30 और इन्फिनिटी में स्मॉल कौन सा है? 30. यानी V3 का नया लेवल हो गया 30. अब V4 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, V1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका तो लेवल इन्फिनिटी ही रहेगा. ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका तो जो ऊपर है वही रहेगा. अब इनमें से टेम्पर ये परमानेंट है, सो इसको हमें काउंट नहीं करना है. टेम्पर कौन कौन सा है? 100, 30, इन्फिनिटी. तो सब इसमें से स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है? मिनिमम वैल्यू किसकी है? 30 है. तो मैं इसको यहाँ पे जो 30 मिनिमम वैल्यू है उसको मैं लॉक करता हूँ. यानी अब V3 का नया परमानेंट लेवल हो गया 30. अभी इसका कितना हुआ है? V2 का 100 बना है. नाउ
स्टेप 2 से हमने क्या किया, मिनिमम लेवल फाइंड किया। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। अब हमारा नया आई कौन सा है, 30 है, यानी कि V3 है हमारा नया आई। इसका काम खत्म हो गया V1 का। अब V1 को हमें कहीं पे पिक्चर में लाना नहीं है। अब हमारे पास नया हमारा आई है 30। नाउ फिर से स्टेप 1, तो 30 से V3 किसके के साथ जुड़ा हुआ है, तो V1 के साथ जुड़ा है। V1 तो ऑलरेडी उसका परमानेंट लेबल है, V2 के साथ जुड़ा नहीं है, बराबर। तो V2 का जो, ये तो ऑलरेडी परमानेंट 0 ही है, V2 जुड़ा नहीं है, तो उसका जो पुराना है वही हमें लिखना है। 30 भी लॉक हो गया है हमारा। नाउ V4, तो यहाँ पे 30 है, तो अब मिनिमम क्या होगा इसका, V4 में तो ओल्ड उसका इन्फिनिटी है, आई का है 30 और इसमें से ये प्लस 10 करेंगे हम dij। अब हमारा आई ये है और जे है, आई का लेबल है 30, dij आपका 10 है, सो 30 प्लस 10 दैट इज 40 और ये इन्फिनिटी, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 40 है। उसी तरह से V3 V5 के साथ भी जुड़ा है, तो 30 प्लस 60 कितना होता है, 90। ओके, अब हमारे पास ये दो परमानेंट लेबल है। टेम्पररी लेबल कौन कौन से है, 100, 40 एंड 90 है। तो उसमें से मिनिमम कौन सा है, 40 है, तो हमें 40 को लॉक करना है। जैसे 40 को लॉक करता हूँ, मतलब 40 यानी V4 को लॉक किया, V4 का हो गया 40, यहाँ पे हमने हो गया डाल दिया 90। अब इसको लॉक किया, तो ये किस किस के साथ जुड़ा हुआ है वो देखना है हमें। एक तो V2 के साथ जुड़ा है, और दूसरी चीज़ आप जुड़ा है वो तो चीज़ अलग है, लेकिन पहले आपको क्या करना है, जो लॉक कर दिया हमने जिन को, वो तो सीधा ही नीचे लिख देना है, उसको हमें छूना ही नहीं है। नाउ V2 जो है हमारा, उसका ओल्ड लेबल क्या है, 100 है, अभी 100 है ना, इन्फिनिटी की जगह अभी क्या है, 100 है। और नया लेबल V4 का लेबल क्या है, 40 प्लस इनका डिस्टेंस कितना है, 15। चलो 40 प्लस 15 यानी 55 और इसका 100, तो मिनिमम क्या हो गया, 55, यानी V2 का अब नया लेबल क्या हो जाएगा, 100 भी निकल गया, क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इसी तरह से V5, तो 40 प्लस 50 90 है, इसका भी 90 ही है, तो कोई मिनिमम रहा ही नहीं, सेम ही आया। अब ये तीन तो परमानेंट है, तो टेम्पररी कौन कौन से है, 55 एंड 90 है, तो उसमें से मिनिमम कौन सा है, 55 है उसमें से मिनिमम। अब मिनिमम 55 यानी 55 को हम लॉक करते हैं। जैसे ही लॉक किया, तो बाकी के जितने लॉक किए उसको तो हमें सीधा ही लिखना है। हमने लॉक किसको किया है, V2 को लॉक किया है, बराबर। अब V2 का V1 तो ऑलरेडी आ चुका है, V4 भी ऑलरेडी आ चुका है, V2 V5 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं, तो वो तो सीधा ही नीचे आएगा। ओके, अब सारे परमानेंट मिल गए, सिर्फ यही टेम्पररी बचा, तो उसमें से मिनिमम तो वो खुद ही होगा। सो ये हमने उसको भी लॉक कर दिया। नाउ यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पाथ बिटवीन V1 एंड V5। तो यहाँ पे मुझे मिनिमम डिस्टेंस सबके मिल गए। कैसे मिले, तो V1 से जब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा V2 का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, V1 से V1 तो 0 ही आएगा। जहाँ पे वो लॉक होते हैं ना, वो उसका मिनिमम डिस्टेंस होता है। जैसे कि V3 है, V1 टू V3 का मिनिमम डिस्टेंस आएगा 30, V1 टू V4 का मिनिमम डिस्टेंस आएगा 40। देखो ऐसे भी पता चल जाएगा 40 कैसे हुआ। यहाँ से यहाँ तक V1 से V14 जाने के लिए 30 प्लस 10 40 आया ना, यहाँ से जाएगा तो 115 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग डिस्टेंस है उसका। लेकिन यहाँ पे जाएगा तो वो 40 ही आएगा। V1 टू V5, तो यहाँ से हो जाता है 30 प्लस 60 90 हुआ, यहाँ से जाता है तो भी 30 प्लस 10 प्लस 50 करके जाएगा तो भी 90 आएगा। सो मिनिमम पाथ उसके पास दो मिलते हैं, लेकिन सबका उसका टोटल आएगा 90। उस तरह से हमारा V2 का क्या मिला, 55 मिला। अब देखो V2 का कैसे जाएगा, वो यहाँ से जाएगा तो वो 100 आएगा, बट वो दूसरा पार्ट सिलेक्ट करता है 30 प्लस 10 40 प्लस 15 यानी 55, तो वो 100 से तो जल्दी पहुँचेगा।
ये 100 किलोमीटर हो, ये 55 किलोमीटर ही है, तो कौन सा पाथ ईजी रहेगा? ये ईजी रहेगा। सो ये जहाँ जहाँ पे ये लॉक हो रहा है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस दिखाता है। सो दिस इज कॉल्ड डिजक्स्ट्राज एल्गोरिथम, जो हमें मिनिमम डिस्टेंस देगा। एक छोटा सा एग्जांपल था। नाउ वी आर गोइंग फॉर लार्ज एग्जांपल। एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम। अब इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी नहीं है, सॉरी जेड है डायरेक्टली। नाउ इस एग्जांपल में मैंने ए टू जेड फाइंड करना है हमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ए का जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम वैल्यू है जेड, उसको पहले से मैंने लिख ही दिया है कि भाई ए को मैंने 0 को तो पहले लॉक ही कर देना है हमें, क्योंकि ए से हमें स्टार्ट करना है। अब हमें डायरेक्टली क्या करना है, बाकी सब तो इन्फिनिटी ही है, इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। तो ए से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये तो ऑलरेडी 0 है ही। ए से कौन कौन से कनेक्टेड है? ए से बी सी एंड डी, तीन ही है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी का हम काउंट कर सकते हैं। तो ए और बी के डिस्टेंस कितना है? 22 है। तो 0 + 22, इसका 0 है। 0 + 22 ये कितना हो गया? 22 हो गया। तो 0 + 22, और ये अभी इन्फिनिटी से कंपेयर करेंगे तो ओल्ड यहाँ पे लिखी है, नया ही हमें ढूंढना है। नया जो आता है उसको ओल्ड से कंपेयर करो। इन्फिनिटी और 22, दो में मिनिमम कौन सा है? 22 है। सी में भी इन्फिनिटी है, और 0 + 1 कितना आता है? 1, जो मिनिमम है। 0 + 8 डी, वो भी मिनिमम है। ई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे इन्फिनिटी ही रहेगा। अभी तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी का चेंज आएगा। अब इनमें से मिनिमम क्या आएगा? 1 आएगा, दैट इज सी आएगा। नाउ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सी, जिसको हमें लॉक करना है। जो मिनिमम आता है टेम्पररी लेवल, उसको हमें लॉक करना है। जैसे मैंने लॉक कर दिया 1 को, तो मेरे पास 2 लॉक हो गए। एक तो 0 तो ऑलरेडी है, और ये 2 परमानेंट लेबल हो गए। 1, इसका भी परमानेंट लेबल हो गया 1। अब सी किसके साथ कनेक्टेड है? ए को तो अब हमें देखना ही नहीं है। सो सी इज कनेक्टेड विथ बी, ओके, एंड ऑल्सो डी। तो पहले बी की बात करते हैं। तो सी का लेबल है 1, और बी के साथ उसका डिस्टेंस है 6, तो 1 + 6 होता है 7। तो 7 और 22 में छोटा सा कौन सा है? 7 है। ऑब्वियस ये 7 छोटा है। तो अब हमारा इसका टेम्पररी लेवल 22 से चेंज हो गया, क्या हो गया? 7 हो गया। इसका मीनिंग ये होता है कि ए से जब वो जाएगा तो यहाँ से वो छोटा डिस्टेंस पड़ेगा, 7 डिस्टेंस में ही चला जाएगा, 7 किलोमीटर में ही चला जाएगा। यहाँ से जाएगा तो 22 किलोमीटर लगेगा। सो अब इसका टेम्पररी लेवल हो गया 7। सी का डी के साथ, तो 1 + 10 कितना होता है? 11। अब यहाँ पे देखो, अभी मेरा इसका टेम्पररी लेवल है 8, और मैं सी के थ्रू जाता हूँ तो 10 + 1 11 हो जाता है। तो मिनिमम क्या है आपका? तो 8 है। सो मुझे 11 नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है? 8 ही लिखना है। नाउ सी का ई के साथ, तो 1 + 4 कितना होता है? 5। इन्फिनिटी से बेटर है 5। 1 + आई थिंक सो मैंने यहाँ पे एक, ओके, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखना भूल गया था, दैट इज 10। इट वॉज अ 10। सो यू कैन सी दैट कि भाई सी से जेड तक जाना है मुझे, तो 1 + 10 11 होता है यहाँ पे, और सी से एफ तक जाना है तो 1 + 3 4 होगा। सो इन्फिनिटी निकल के इसके सबके टेम्पररी वैल्यूज आ गए, दैट इज यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, और यहाँ पे एफ उसका वैल्यू हो गई 4। ना इनमें से जो टेम्पररी वैल्यू उसमें से मिनिमम होता है एफ की वैल्यू, दैट इज 4। तो मुझे उसको लॉक करना है, और मैंने इसको लॉक करते यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 लॉक हो गए हैं। तो ये भी परमानेंट हो गया। अब ये परमानेंट हो गया, मतलब कि एफ से मुझे देखना है, तो सी के बाद अब एफ से मुझे जाना है बी तक, तो एफ से बी सीधा कनेक्टेड है। अब 4 + 7 कितना होता है? 11, और यहाँ पे तो 7 है, सो मिनिमम तो 7 ही रहेगा।
अब F से हम देखते हैं डी कनेक्टेड है 4 + 6 10 और यहाँ पे तो 8 है, सो मिनिमम तो 8 ही रहेगा। 4 + 9 दैट इज 13 और यहाँ पे तो 11 है, सो बेटर है कि यहाँ पे 11 ही रहेगा। और E के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो E की जो वैल्यू है वही वैल्यू रहने देनी है हमें। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है? E है, दैट इज़ 5, तो उसको लॉक करते हैं। जैसे उसको लॉक किया, बाकी के तो ऑलरेडी लॉक है ही, 1 5 एंड 4। अब E के ऊपर हमने जो लास्ट लॉक किया है वो E है। E से B की वैल्यू लिखते हैं 5 + 2 7 और ये 7 ही है, तो सेम रहेगा। E से D कनेक्टेड नहीं है, तो D की वैल्यू वही रहेगी। और 5 + 4 यहाँ पे 9 होता है, जबकि यहाँ पे 11 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 9। सो यहाँ पे चेंज हो गई वैल्यू 9। सो अब जो टेम्परेरी हमारे पास बचे 7 8 और 9, उसमें से मिनिमम 7 है, तो उसको लॉक करते हैं, यानी कि B को लॉक किया हमने। अब 7 से A ऑलरेडी आ चुका है, C भी आ चुका है, E भी आ चुका है, F भी आ चुका है, सिर्फ बाकी बचा है Z। तो 7 + 2 9 है और यहाँ पे भी ऑलरेडी 9 है, तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं पहले इसको जो लॉक वैल्यू है वो लिख देता हूँ। अब हमें पता चलेगा कि हमें सिर्फ दो ही चीज़ों को देखना है, एक D को देखना है और एक Z को देखना है। तो B D के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो सीधा वो वैल्यू रहेगी, और Z के साथ कनेक्टेड है लेकिन 7 + 2 9 और यहाँ पे भी 9 ही है, तो वो सेम ही रहने वाला है। अब इसमें जो टेम्परेरी वैल्यू बची है वो है 8 एंड 9। तो 8 आपका मिनिमम वैल्यू है और उसको लॉक करते हैं। जैसे ही उसको लॉक किया, 0 7 1 8 5 एंड 4। अब जो जहाँ पे हमने D को लॉक किया वो 8, वो उसका Z के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो वैल्यू सेम ही रहेगी। सो लास्ट आपके पास वैल्यू मिनिमम वैल्यू Z एक ही आई, वो 9। सो यहाँ पे ये वैल्यू लॉक हो गई। अब ये लॉक तो हो गई, लेकिन अब जितने भी लॉक वैल्यू है वो हमें सिर्फ देखनी है। सो A to A का डिस्टेंस तो 0 ही होता है। A to B का डिस्टेंस आ रहा है 7, C में आ रहा है 1, D में आ रहा है 8, E में आ रहा है 5 4 एंड 9। या फिर आप यहाँ पे लास्ट में भी देख सकते हो सारी वैल्यूज़ का आंसर, 0 7 1 8 5 4 9। सो ये आपकी लॉक वैल्यू हो गई। सो आपको मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम A टू आपको सारे मिल गए यहाँ पे। ओके, ये जो था वो सारे जो ग्राफ थे वो ऑब्वियसली के वो डायरेक्टेड ग्राफ नहीं थे, अनडायरेक्टेड ग्राफ थे। सो नाउ वी आर गोइंग वन अनदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने जो एल्गोरिथम लिया वो B2G है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है मुझे। मैं उसको थोड़ा स्पीड में लूँगा आपके लिए, सो आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए जल्दी, क्योंकि अब इन्फिनिटी आपको पता चल गया कि मिनिमम जो 0 है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है B से। अब B का A के साथ रिलेशन यहाँ पे 0 हो गया, इसका परमानेंट लेबल। अब इसका लेबल हो जाएगा 7, यानी A का 7, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 + 1 = 1। ये 0 तो ऑलरेडी परमानेंट लेबल है। बाकी किसी के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे तो पुरानी वैल्यू हमें नीचे लेनी है। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 1, यानी C। यहाँ पे हमने इसको लॉक किया, अब यहाँ पे 1 को लॉक कर रहे हैं, तो ये 1 आपका लॉक हो गया। ओके, यानी 0 एंड 1 ये दो चीज़ें ऐसी है जो आपकी लॉक हो गई। अब C से हम देखते हैं, B को देखना नहीं है हमें। A कनेक्टेड, तो 1 + 3 कितना होता है? 4, और यहाँ पे 7 है, तो मिनिमम हो गया आपका 4। C से जो E है तो 1 + 4, यानी अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। C से F तो 1 + 3, इसकी वैल्यू हो गई 4। C से D कनेक्टेड नहीं है, C से G भी कनेक्टेड नहीं है, तो वो तो वापस रिटर्न हो जाएगी। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो 4 है वो आपका 2 बार है, एक A में भी है और F में भी है,
और दोनों ही मिनिमम है। सो हम दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि मैंने ए का सिलेक्ट किया, ए को अगर मैंने लॉक किया यहाँ पे, ए को जैसे ही लॉक किया मुझे ए से देखना है, तो यहाँ पे ए से डी का जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये नहीं देखना है, क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है ना कि इस तरफ। ए से डी का जो एरो मुझे देखना है, यहाँ पे भी देखिए सी से ए तरफ जा रहा है, सी से ई तरफ जा रहा है, सी से एफ तरफ जा रहा है। ए से डी तरफ जा रहा है वो 8 है, यानी 8 और 4 हो जाते हैं 12, यानी डी की वैल्यू जो आई वो 12 आई है हमारी। अब जो मैं यहाँ पे लॉक वैल्यू पहले लिख देता हूँ जो आपको कंफ्यूज ना करे, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपकी 4 आई हुई है। अब ए से ई की ओर जो जा रहा है वो 4 + 2 6 हो रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 ही मिनिमम रहेगा, और कहीं पे ए की वैल्यू जा नहीं रही है। सो इसको तो ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा वापस। अब फिर से मिनिमम वैल्यू आएगी यही एफ की 4, तो इसको लॉक करते हैं। नाउ यहाँ पे भी वापस लॉक वैल्यू मैंने लिख दी है। अब एफ से देखते हैं, एफ को मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे। एफ से जो एरो जा रहा है जी की और वो 7 है, 4 + 7 कितना होता है 11, यानी जी की यहाँ पे वैल्यू 11 है। एफ से एक ई तरफ जा रहा है, 4 + 4 8, लेकिन ई तो 5 ही है। एफ से डी की ओर जा नहीं रहा है तो उसको वैल्यू ऊपर से नीचे वहीं उतारना है, लेकिन एफ से डी की ओर ये जा रहा है जो 4 + 10 होके जा रहा है। सो 4 + 10 14, और ये 12 है तो यहाँ पे 12 ही रहेगा। अब इसमें से मिनिमम क्या हो गया, ये 5, जिसको हमें लॉक करना है। 5 मिनिमम वैल्यू, उसको हम लॉक करते हैं, यानी ई को हमने लॉक किया यहाँ पे। अब ई की ओर से कौन कौन से जा रहे हैं एरो, तो ये बाकी सब तो अंदर आ रहे हैं, सिर्फ जी की ओर जा रहा है वो। 5 + 2 7 है, और यहाँ पे 11 है, तो मिनिमम कौन सा हो गया 7। सो जी की वैल्यू 7 है। बाकी की लॉक वैल्यू तो सीधा ही नीचे लिखना है मुझे। ओके, और डी की ओर जा रहा है, इसे नहीं जा रहा है, उसकी ओर से आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, सो उसकी वैल्यू वापस नीचे वही रहनी है। अब मिनिमम वैल्यू आती है 7, जिसको मैंने लॉक किया। 7 वैल्यू है जी की, जी से डी की वैल्यू हमें मुझे पता है, बाकी की वैल्यू तो मुझे सीधे नीचे ही उतारनी है। जो लॉक वैल्यू है वो तो हम सीधे नीचे ही लिख देंगे वापस। अब जी से डी की ओर जा लिखते हैं, तो 7 + 2, जिसको मैंने लॉक किया है, 7 + 2 होता है 9, और यहाँ पे लिखा था 12। सो इसकी वैल्यू मिनिमम हो गई 9। अब फिर से एक ही मिनिमम बचा है तो वही लॉक होगा हमारा। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 401, यहाँ से 12 401 957। थैंक यू।